Hello students, today I will tell you that how to frame the objectives in the synopsis or the research proposal. So the basic thing of this topic is to explain you that how you can frame the objectives in your research proposal in the proper manner so that your research should go smoothly throughout your research period. So before explaining that how to frame the objectives, this is very important that you should know what is the meaning of the objective. So objective means the steps which you are going to do to achieve your research aim. So there is the aim is clear in the title of the research which you have already decided. So in the title there may be the relationship, there may be the impact, there may be the influence, or any aim is clear in the title. But to achieve that aim, there are the few steps that should be followed by the students. That is called the objectives. तो मैं ये कहूँगी कि objectives यानी कि एक रिसर्च के जो आपका जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए जो आप सारे स्टेप्स करते हो, जो सारी चीज़ें देखते हो, उसको हम objectives कहते हैं. तो how to frame these objectives I will tell you today. But before this, there are the two guidelines that should keep in the mind at the time of designing the objectives in the research proposal. First is that there should not be more than the 5 or 6 objectives in the research because they can mislead, they can overload the data and mislead the research proposal. So this can be mismanaged also. So this is very important. There should not be more than 5 or 6 objectives in a research proposal. Second thing, there should be the objectives, whatever you are framing, that should be well defined, well designed, and very clearly stated in the research proposal so that you can achieve it in a very smooth manner. तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए, 1 या 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, बट दैट शुड बी वेरी क्लियर. जितना मिनिमम हो उन ऑब्जेक्टिव्स को बनाइए और वो बहुत ही क्लैरिटीज़ के साथ बनाइए कि आपको उसमें करना क्या है. नाउ सेकेंड थिंग आई विल टेल यू दैट हाउ टू फ्रेम द ऑब्जेक्टिव्स. आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. I am taking a very common example of the educational research to study the impact of anxiety and the stress level on the academic achievement of the senior secondary students, which is a very common topic in educational research. So first of all, in this example, you have to read the title very clearly. You have to see that how many variables are here. So in this example, there are the 3 variables. First is the anxiety level, second is the stress level, and third is the academic achievement. So before framing the objectives, these variables should be analyzed, that which variables are the independent variables and which are the dependent variables. So in this example, in this topic, there are 3 variables in which 2 variables are independent variables and 1 is the dependent variables. Like stress level and the anxiety levels, which are not influenced by any factor or anything, so they are the independent variables. But academic achievement of the senior secondary students are going to be influenced by the stress level and the anxiety level. So therefore the academic achievement is the dependent variable here in the title. So whenever you are going to start to frame the objectives, so in this title, first objective will be identification. That should be related to the identification. कि आपको जो है एंग्जाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल का इन्फ्लुएंस आपने एकेडमिक अचीवमेंट पे देखना है बच्चों की. तो आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको उनका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनका एंग्जाइटी लेवल क्या है और स्ट्रेस लेवल क्या है. तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप बनाना शुरू करेंगे तो उसमें आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव सारे बनेंगे. तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव बनेगा दैट विल बी टू आइडेंटिफाई द एंग्जाइटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. दैट विल बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड विल बी टू आइडेंटिफाई द stress level of the senior secondary students.
एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो उनकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल पैरेलल टू टाइटल होना चाहिए। जैसे टाइटल में लैंग्वेज यूज़ की है वैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव्स में करनी है। सो जैसे कि टाइटल में आपको सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का ही सब कुछ देखना है, तो यहाँ पे भी सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ही लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी टू आइडेंटिफाई द एंग्जाइटी लेवल ऑफ senior secondary students. Second will be to identify the stress level of the senior secondary students. Third will be, now we have to analyze we have to see the academic achievement of the students. So third objective is to identify the academic achievement of the senior secondary students. तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं 2 और 3, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 और 3 बनते हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। सेकंड जो टाइटल का एम है, द एम इज यू हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ एंजाइटी एंड द स्ट्रेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो जो आपका जो एम है दैट यू हैव टू सी द रिलेशनशिप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। तो जो आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव बनेगा दैट विल बी रिलेटेड to relate the anxiety level and the academic achievement of the senior secondary students. Fourth will be to relate the stress level and the academic achievement of the senior secondary students. And it means कि जो आपने fourth और fifth objective बनाया है that is related to the aim of the title. तो एम ऑफ द टाइटल था कि हमें उनका रिलेशनशिप देखना है, उनका इम्पैक्ट देखना है स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी लेवल का। तो जो फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव बनाए हमने वो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड बनाए, और जो आपने फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जेक्टिव बनाया वो आपने रिलेशन से रिलेटेड बनाया जो कि टाइटल एम था। अब जो लास्ट ऑब्जेक्टिव जो इसमें बनेगा, 6th ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो होगा कि यू हैव टू क्रिटिकली इवेलुएट द रिलेशनशिप ऑफ द एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल एंड द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना है, जिसमें कि पहले ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होंगे, जो बीच वाले ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके टाइटल जो रिसर्च का एम है मेन उससे रिलेटेड होंगे। उसमें आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, कंपेयर भी हो सकता है, उसमें आपका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो भी रिसर्च का एम है उससे रिलेटेड आपके जो है बीच के ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, और जो लास्ट का ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका क्रिटिकली इवैल्यूएट होगा, ताकि जो कि आपकी रिसर्च को पूरा करता है कि हाँ हमने जो है रिसर्च में ये सारी चीज़ें देखी हैं और ये रिजल्ट्स आए हैं। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने रिसर्च के फ्रेम करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो एक एग्जांपल था जो कि एक रिसर्च की जा रही है सर्वे मेथड से, जिसमें आप क्वेश्चनर्स से डाटा कलेक्शन करके जो है रिसर्च कर रहे हो। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है, कुछ बच्चों ने टाइटल एक्सपेरिमेंटल पर भी जो है टाइटल्स लिए हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल सर्वे करना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि उसमें कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है और ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने ये टाइटल चूज़ किया है कि वो जो है ऑनलाइन टीचिंग का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं बच्चों पर। तो मैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले रही हूँ जो कि एक्सपेरिमेंटल है, जो कि आजकल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, और हम उसकी जैसे मान लो इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं। तो एक ये टाइटल का एग्जांपल लेती हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ऑनलाइन एंड द कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू द सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है कि बच्चों को जो सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन टीचिंग से भी पढ़ा रहे हैं, और आप उसको कन्वेंशनल टीचिंग मीन्स क्लासरूम टीचिंग, तो फेस टू फेस टीचिंग जिसको कहते हैं, उससे भी पढ़ा रहे हो। तो आप उसको कंपेयर करना चाहते हो कि कौन सी टीचिंग अच्छी है और किस में ज़्यादा अच्छे से बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इस केस में आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी होती है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन टीचिंग भी करनी है और साथ में फेस टू फेस टीचिंग भी करनी है, और फिर उसको कंपेयर करना है। तो इस केस में अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम होंगे? इस वाले टाइटल में आपके 2 वेरिएबल्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग एंड सेकंड इज द कन्वेंशनल टीचिंग और फेस टू फेस टीचिंग। तो
दोनों वेरिएबल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल में इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सिंपल जैसे जो टाइटल है कि यू हैव टू कंपेयर दिस ऑनलाइन एंड फेस टू फेस टीचिंग, तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनेगा टू कंपेयर द ऑनलाइन एंड कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ द मैथमेटिक्स टू द सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्टूडेंट्स। सेकेंड बनेगा to compare the online and the face to face or the conventional teaching of the mathematics to the senior secondary boys students। इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल में 2 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनते हैं, तो इसमें आपके 2 ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे और आप कंपेयर करोगे कि गर्ल्स स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और बॉयज़ स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर दोनों को कंपेयर करके कंक्लूजन निकालोगे। इसमें थर्ड ये ले सकते हो कि क्रिटिकली यू विल इवेल्युएट द कंपैरिजन ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग एंड द फेस टू फेस टीचिंग। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंटल में भी ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर सकते हो बहुत ही प्रिसाइजली। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हो तो वो बहुत ही वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिजाइंड होने चाहिए, सो डैट योर रिसर्च शुड नॉट बी फ्रेगमेंटेड और द scattered. So this is the main thing of the research, that the objectives should be well framed. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने आ गए होंगे एंड यू कैन फ्रेम इट वेरी वेल in your synopsis. Thank you.